broken down this juggling in 3 steps. The first step is one ball juggling, and in order to practice one ball juggling, it will take 2 minutes, and then later on you will go for two ball juggling, which will take about 5 minutes, 4 to 5 minutes, and after mastering on two ball juggling, you will go to three ball juggling, and that will take about 5 minutes to understand the concept of juggling. So apparently 5 plus 5 plus 2, and if you take 3 minutes in spare, maximum in 15 minutes you can become a juggler. So first let me show you what juggling means. Juggling means is this. Alright, so I hope you understand what juggling means is. So before starting with juggling with three balls, let's juggle with one ball. So what I mean to say juggling with one ball is this: you should be able to throw and catch a single ball like this. अब इसमें कुछ कोई खास बड़ी बात नहीं है, but the point is your hand should be able to understand that your hand is going to do the throwing and catching activity quite frequently. If you are not a cricketer, if you are not a basketball player, and if you are not a player, then you need to have a good command over catching and throwing the ball. So this is how you do it. This is called one ball juggling. Just do it for a couple of times, say 10 times or 15 times, and you'll be okay with that. Alright? So this is first part of one ball juggling. For second part of one ball juggling is this: you should be able to throw ball like this and catch like this. Throw it and catch it. Throw it and catch it. Throw it and catch it. अभी काफी आसान सी चीजें लगती है, and you think इसके अंदर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, but still there are a couple of very important points while throwing a single ball like this and catching it like this. The most important thing about throwing and catching a single ball like this is you see this single ball makes three end points. This is one point, this is another point, and this is another point. This ball creates 3 points, and 3 points consist of a plane, and this ball should always be thrown and caught in this plane only. मतलब कि इस तरीके से फेंकी जानी चाहिए इस प्लेन के अंदर, और इसी प्लेन के अंदर कैच होनी चाहिए. What I mean to say is, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बॉल दूर जाएगी like this. ठीक है. So you make sure that you always throw the ball in the plane and catch the ball in the plane only. ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि उसको दूर फेंकने से और पास फेंकने से, बट उससे होता है क्या, बॉल दूर जाएगी तो गिरने के चांसेस होते हैं, पास आती है तो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स इट डजंट लुक लाइक अ गुड प्रैक्टिस. द परफॉर्मेंस डजंट लुक लाइक अ गुड परफॉर्मेंस. ऑलराइट, तो आप इस तरीके से फेंकेंगे और इस तरीके से कैच करेंगे. अच्छा, इसके पीछे की ट्रिक ये है, व्हेनेवर यू आर थ्रोइंग द बॉल, योर wrist should be locked. मेरे कहने का मतलब है, it should not be like this, it should not be like this, it should be straight, it should be always locked, always locked. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको ऐसे थ्रो करते हैं लाइक, तो ये पास में आ जाती है, राइट, और इसको दूर करेंगे तो ये दूर चली जाएगी. ऑलराइट, सो ये हमेशा यहाँ से लॉक होनी चाहिए, एंड एवरी मोमेंट व्हाइल जगलिंग शुड बी अबाउट दिस एल्बो. ऑलराइट, दिस एल्बो. फाइन. सो यू आर थ्रोइंग द बॉल एंड कैचिंग द बॉल in this plane, which is made by 3 points. 1 point, point number 2, point number 3. So you spend some time here, like a minute or 2 minutes, or you can keep a count. You can practice for 30 times or 40 times or 50 times, as long as you start feeling comfortable. Alright, so this is called one ball juggling. Now we need to add second ball. While you are adding second ball, the most important thing while adding second ball in the juggling is this. Basically, we have come to the second point, two ball juggling. It will take about 5 minutes to master, but in order to understand the concept behind two ball juggling, it will take less than a minute to understand the concept. The concept is this: when you are throwing this ball, and this ball gets thrown, it goes here, and the moment it goes here, the second ball gets thrown. Alright,
जैसे ही ये बॉल यहां से उठ के यहां पहुंच जाती है, आप दूसरी बॉल को फेंक देते हैं और ये बॉल यहां आ जाती है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ गॉन गॉन कैच, गॉन गॉन कैच, गॉन गॉन कैच। पुराने सारे फंडे अभी बरकरार हैं। दोनों की दोनों बॉल्स प्लेन के अंदर होनी चाहिए। बोथ द बॉल शुड बी थ्रोन इन द प्लेन। वन थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज, जैसे ही एक बॉल टॉप पर पहुंचती है, दूसरी बॉल उसी मोमेंट में फेंक देनी चाहिए। नो अर्लियर नो लेटर। इससे क्या टाइमिंग बिगड़ जाती है, इससे एक इम्बैलेंस आ जाता है दोनों बॉल्स की टाइमिंग के अंदर। सो यू मेक श्योर यू डोंट डू दैट। मेरे कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि इस बॉल को यहां से फेंक और इस बॉल को यहां से फेंक दिया, मतलब बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। देखो मैं साइमल्टेनियसली फेंक रहा हूं, मतलब मैं कर लेता हूं ठीक है, बट इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। एनीवे, सो द मोमेंट दिस बॉल रीचेस हियर, यू थ्रो दिस बॉल एंड दिस कॉल्ड सेकंड बॉल जगलिंग। यू कीप स्विचिंग द पॉइंट्स, यू कीप स्विचिंग द हैंड्स। पहले इससे फेंक दिया, फिर इससे फेंक दिया। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू जगल विद टू बॉल्स। स्पेंड सम टाइम, प्रैक्टिस दिस। 100 तक काउंट कीजिए, 50 तक काउंट कीजिए। 1 2 कैच कैच, 1 2 कैच कैच, इस तरह से काउंट कीजिए। मेक योर सेल्फ साउंड स्टूपिड, बट दैट विल रिजल्ट इनटू समथिंग गुड। ऑलराइट, alright, now comes the trickiest part. The trickiest part is 3-ball juggling, and as I've already mentioned, this is the trickiest part. But before we go on to the trickiest part, we need to understand the concept. Again, everything is about the concept, because concept is something that goes directly in your mind, and when your mind starts accepting the idea of juggling, your hands start juggling by default. Fine. So the concept behind 3-ball juggling is this. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉल को, तीसरी बॉल को यहां पर इस हाथ के अंदर ऐसे इनर्ट रखता हूं, मतलब दिस इज प्रेजेंट इनएक्टिवली, ये कुछ काम नहीं कर रही। मैं अभी 2-ball juggling कर रहा हूं लाइक दिस। ऑलराइट, दिस इज 2-ball juggling, इसका मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं, लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होल कॉन्सेप्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड द होल जगलिंग। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, अभी भी मैं 2-ball juggling ही कर रहा हूं। तीसरी बॉल को मैंने यहां पर छुपा के रख रखा है, सुरक्षित है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंक रहा हूं। अब देखिए होता क्या है, मेरे इस लेफ्ट हैंड के अंदर 2 बॉल्स हैं, तो मैं जिस बॉल को पहले फेंकता हूं मैं उसको बॉल नंबर 1 कहूंगा। दिस इज बॉल नंबर 1, दिस इज बॉल नंबर 2। तो बॉल नंबर 1 एंड 2, फाइन, बॉल नंबर 1 2, 1 2 कैच कैच, 1 2 कैच कैच, 1 2 कैच कैच, 1 2 कैच कैच। अगेन 1 2 कैच 1 कैच 2, 1 2 कैच 1 कैच 2, 1 2 कैच 1 कैच 2। 1 का मतलब है 1 गेट्स थ्रोन, 2 का मतलब है 2 गेट्स थ्रोन, कैच 1 का मतलब है फर्स्ट गेट्स कॉट, एंड कैच 2 का मतलब है सेकंड वन गेट्स कॉट। फाइन, सो 1 2 कैच 1 कैच 2, 1 2 catch 1 catch 2, 1 2 catch 1 catch 2. Now observe this. This is very important point. आपने एक को फेंका, दूसरे को फेंका, पहले वाले को कैच किया, दूसरे वाले को कैच किया, 3 या फिर हम से 4 इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 1 2 कैच 1 एंड कैच 2, 3 या 4 इवेंट्स हो रहे हैं। मीनवाइल ये जो तीसरी बॉल है, द बॉल नंबर 3, ये बोर हो जाती है, आपका ये लेफ्ट हैंड बोर हो जाता है। आप सोचते हैं कि यार ये कर क्या रहा है, यार ये 2 बॉलें मजे ले रही हैं आपस में। ऑलराइट, ये कर क्या रहा है, आर यू गेटिंग मी? ये बॉल बोर हो जाती है। आपने क्या करना है, किसी भी मोमेंट पर, ठीक है, शुरू में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी भी मोमेंट पर आपको इस बोर होती हुई बॉल को फेंक देना है, या फिर इस बोर होते हुए हाथ को ये इंश्योर करना है कि ये इस बॉल को फेंक दे, बस फेंक देना है। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बस फेंक देना है, वो कैच हो या ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है 1 2 कैच कैच, 1 2 कैच कैच, 1 2 1 2 3, आर यू गेटिंग मी?
नाउ ये तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर चुका हूं इसलिए मैंने कैच कर लिया, अदरवाइज यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कैचिंग द थर्ड बॉल। ये क्या होगी, थोड़ी गिर जाएगी, पलंग के नीचे जाएगी, टेबल के नीचे जाएगी, बाथरूम में घुस जाएगी, थोड़ा झुकना पड़ेगा, कमर में दर्द होगा, बट यू हैव टू बियर विद ऑल दोस काइंड ऑफ पेन एंड ट्रबल्स। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ जगलिंग। एनीवे, सो 1 2 कैच कैच, 1 2 कैच कैच, 1 2 कैच कैच, 1 2 कैच कैच, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि चूत। ऑलराइट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब आपने क्या है कि एक बॉल को फेंकना सीखा, दूसरी बॉल को फेंकना सीखा, तीसरी बॉल को भी फेंकना सीखा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द लास्ट वन इज टू बी एबल टू थ्रो द फोर्थ बॉल। आपने चौथी बॉल को फेंकना सीखना है। और चौथी बॉल कौन सी, जो पहली बॉल थी। मेरे कहने का मतलब 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4। Congrats, you have become a juggler now. You keep practicing it. Trust me guys, juggling is in our genes. You don't have to bother too much about juggling. When you start practicing, it should not take more than 3 days to be able to juggle like this. Wish you good luck. Happy juggling.